So today we will be starting. We will be discussing about surface area and volume. Surface area क्या होता है, volume क्या होता है. This concept already you know. But the area of the surface of any figure, किसी थ्री डायमेंशनल फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं उन सरफेस का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया, और सारे सरफेसेस का जो एरिया मिला के जो कैलकुलेट होता है दैट इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया. दो चीजें हैं यहाँ पे, एक होता है सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस. अब कुछ फिगर्स हम लोगों ने पढ़ी थी. और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज ऑक्युपाइड बाय that three dimensional surface. वॉल्यूम का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ थ्री डायमेंशनल सरफेस के लिए होता है. दिस कंसेप्ट इज नॉट फॉर टू डायमेंशनल बॉडीज. So this concept is only for three dimensional body. So we have हम लोगों ने अभी तक 9th स्टैंडर्ड में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप पढ़े थे. पहला शेप जो हमने पढ़ा था दैट वाज कॉल्ड क्यूबॉइड. और क्यूबॉइड में दो टाइप की चीजें होती हैं. टोटल सरफेस एरिया होता है, लैटरल सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, और length of the diagonal होता है. So the total surface area of cuboid is nothing but the area of all the six faces of the cuboid, and its value will be twice of L into B plus B into H plus H into L. This will be the total surface area of the cuboid. Next is lateral surface area. अगर मैं lateral surface area की बात करूं, और area of the four walls. अब जिस कमरे में बैठे हो उस that कमरा is in the shape of a cuboid. जब आप उस कमरे को ध्यान से देखोगे बेटा तो there will be four walls. चार तो आपके पास दरवाजे होंगे. देखो जैसे ध्यान से, एक दीवार मेरे पीछे है, एक दीवार मेरे सामने होगी कहीं पे, एक दीवार मेरे, ये पेन दिख रहा है, हाँ, एक दीवार मेरे राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में होगी, एक दीवार मेरे राइट हैंड साइड में. सो देयर आर टोटल 4 वॉल्स इन द रूम. एक टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया, ठीक है. तो thus there are total 6 surfaces. जब हम lateral surface area की बात करते हैं तो I subtract this top and this bottom surface. मैं इस top और bottom को हटा दूंगा, and lateral surface area is also equal to the area of 4 walls, which is equal to 2H into L plus B. Finally, the volume is nothing but length into breadth into height, which is equal to L into B into H. Area length of the diagonal will be square root of L square plus B square plus H square. Next is cube. Cube की अगर हम बात करें तो cube में भाई क्या होता है? There are total 6 faces in the cube, and the total surface area of the cube is 2 into x square plus x square plus x square, which is equal to 6x square. Lateral surface area of the cube is 2 into, yes, 2 into x square plus x square, which is equal to 4x square. Volume is equal to x2. Length of the diagonal is root 3 into x. Next is cylinder. Cylinder में curved surface area होता है 2 pi RH, and the volume is equal to 2 pi r multiplied by total surface area is equal to 2 pi r multiplied by h plus r, and the volume of the cylinder is equal to pi r square into h. Next is cone. Cone में the total surface area is nothing but pi r into L plus r, or curved surface area is pi r L, and the volume is 1 by 3 pi r square into h. स्फीयर में कोई भी कर्व सरफेस एरिया का कोई कंसेप्ट नहीं होता है. स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 pi r square, and the volume is equal to 4 by 3 pi r cube. Hemisphere में curved surface area is 2 pi r square, total surface area is 3 pi r square, and the volume is equal to 2 by 3 pi r cube. This was just a recapitulation of what we have already done, and this was the question that we have already discussed in the last class. ठीक है. अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, then we will move further. Just try this question very fast. The curved surface area of a cone is 550 square centimeter, and its diameter is this. We have to find the height. I think this question also we had done. यहाँ पे एक राइट एंगल था जो कि 24, 7 और 25
I told that I know that this is a Pythagorean triplet, so I can do this question quickly. Yes, मेरे को याद आ गया कि इस तरीके से हमारी कुछ बात हुई थी पिछले क्वेश्चन में से रिलेटेड। चलो नाउ ये क्वेश्चन में अपन ने कर लिया था कि दो सिलेंडर थे जिनका रेडियस का रेशियो 1:2 था, हाइट का रेशियो 2:1 था, तो मेरे को रेशियो वॉल्यूम का निकालना था। दैट आल्सो वी हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चल अब नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। अब सर ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स क्या होता है? अब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में बेटा क्या होता है कि एक अगर मान लो एक स्फीयर, ठीक है, अब एक स्फीयर है, एक स्फीयर को मैंने मेल्ट करके, सपोज करो मैंने सिलेंडर करा, तो मेल्टिंग के केस में, रिकास्टिंग के केस में इस तरीके की जो डिफरेंट डिफरेंट फैंसीफुल टर्म्स जो आपको मिलेंगे, वहां पे आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सॉलिड। इनिशियल सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम फाइनल सॉलिड का होने वाला है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन टू से माय डिफरेंस इज, सपोज करो मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, अब इस सिलेंडर को मेल्ट करके मैंने इस सिलेंडर का रेडियस मान लो 7 सेंटीमीटर और हाइट भी चलो 7 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर को मेल्ट करके मैंने एक कोन में कन्वर्ट कर दिया और इस कोन का जो रेडियस है सपोज दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। मुझे बताना है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कोन, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कोन, ये मेरे को बताना है। तो मैं इसको कैसे बताऊंगा सर? सिंपल सी बात है, वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया जाए, आई विल गेट द आंसर। यहाँ पे रेडियस था 7 सेंटीमीटर, हाँ, डायमीटर वाज नॉट 7 सेंटीमीटर, सो पाई इनटू 7 into 7 into 7 will be equal to 1/3 pi into 7/2 multiplied by 7/2 multiplied by height। अब अनिमेश वीरता अवार्ड लेने के लिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व दिस, you are supposed to equate these two things, cancel the common terms, get the answer and enjoy your life। सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल होगा, so h will be equal to 7 into 3 into 2 into 2 which is equal to 12 into 7 which is nothing but 84। बस खत्म। So the height of the cone will be equal to 84 centimeter। This is how you are supposed to solve this question। ज्यादा दिमाग लगा कि यहाँ पहले सॉल्व करो, फिर यहाँ सॉल्व करो, फिर दोनों को इक्वेट करो, फिर h की वैल्यू निकालो, क्या जरूरत है भाई? जब सीधे सीधे सवाल सॉल्व हो रहा है तो मेरे को तो नहीं लगता कुछ जरूरत है, ठीक है। So this is how the questions are to be done। Now comes my favorite question। So this is the question and you have to solve this question। The time for this question is 2 minutes। And your time starts now। Pi से pi cancel हुआ and here it will be 2 square से 4 cancel हो जाएगा, so basically it will be 3 cube divided by 3 which is equal to 9। The total number of cones, the required number of cones will be equal to 9। कैसे किया सर? मैंने फिर से समझ लो, मैंने वॉल्यूम्स को कंपेयर कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने हाइट का रेशियो लिख दिया, मैंने रेडियस का रेशियो लिख दिया और वॉल्यूम का रेशियो लिख के मैंने टर्म्स को कैंसिल कर दिया एंड आई गॉट द रिजल्ट एज 9। आई फाइनली गॉट द रिजल्ट एज 9। सो 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है, आई एम ओपन टू क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। An iron rod of length 1 meter and diameter 4 centimeter is melted and recast into wires of length 20 centimeter each। If 2000 wires are to be made, what is the ratio of each thin wire? Your time starts now। सिंपल सा फंडा है भाई। अगर 70 की क्लास में या 50 की क्लास में अगर 2-3 लोग बोलते हैं कि सर हो गया, दैट मींस द क्वेश्चन
can be done. So we want the discussion now. So let us discuss the things. A rod of length 1 meter and diameter 4 centimeter. Length है 1 meter, diameter है 4 centimeter. यहाँ पे जो इनिशियल रॉड होगी और जो फाइनल रॉड होगी ना बेटा, दोनों की दोनों रॉड्स क्या हैं? सिलिंड्रिकल शेप में. यहाँ पे जो इनिशियल रॉड है, जो फाइनल रॉड है, दोनों की दोनों रॉड्स मेरी सिलिंड्रिकल शेप में है. दिस आई शुड कीप इन माय माइंड. अब अपन क्या करेंगे? द रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर. द लेंथ है इसकी 1 मीटर और डायमीटर है 4 सेंटीमीटर. तो इस रॉड का जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द रॉड, अपन क्या करेंगे? फॉर द सिंप्लिसिटी वी विल कीप द यूनिट्स इन, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये खाली मीटर में से काम करते, इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो नाउ विल बी, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द थिंग्स, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द इक्वेशन. तो वॉल्यूम ऑफ रॉड विल बी इक्वल टू पाई इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000 100 पक्का? सर 100. हाँ सर. नहीं यार, 1000 होते हैं यार. सर सेंटीमीटर 100 होते हैं, मिलीमीटर 1000 होते हैं. नहीं यार, 1 मीटर में 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं यार. नहीं सर 100 होते हैं पक्का. पक्का श्योर? सोच लो, गलत मत बताना. ये तो सारे के सारे नहीं मिलकर सर डाटा सही ही है. है. ठीक है, पक्का मान लो तुम्हारी बात. चलो ठीक है, अच्छी बात. देखो, इस टाइप की छोटी छोटी गलतियां करना जरूरी होता है, तभी पता चलता है कि जो क्लास है कितनी अटेंटिव. सी, तो पाई इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी पाई इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2. इस पैसे लिखो, पाई इंटू 100 multiplied by 2 into 2. This will be the volume of the initial rod, iron rod. और इस रॉड को मैंने वायर में चेंज किया है. तो देयर आर टोटल 2000 वायर, तो 2000 ये हो गया. एंड मेरे को लेंथ दी हुई है पाई इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर. नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. कैसे करेंगे देखते हैं. ये इससे यहाँ पे कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए मेरे यहाँ पे. 2 से ये 4 कट कैंसिल हो गया. सो दिस विल बी आर स्क्वायर विल बी नथिंग बट 1/100 और आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/100 which is equal to 1/10. So my radius will be nothing but 1/10 is nothing but 0.1 centimeter. So my radius will be nothing but 0.1 centimeter. ठीक है. अगर आप इसको मीटर में लेके कन्वर्ट करते, बेकार में अननेसेसरी बहुत सारे डेसिमल्स आ जाते. और 20 सेंटीमीटर को पहले 20/100 करते. ठीक है. यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को आप 2/100 करते. So that would have given me unnecessary headache और लास्ट में सबको कैंसिल होना है. So that is why I have done it right. I have done this directly. Yes, you can. That is why I have done it directly. That it will be equal to 0.1. One more thing. There are few things जो कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली इंग्रेव्ड होती है. आपको इस चीज को लिखने के लिए, गलत लिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर. जैसे मैंने लिखा, आपने पकड़ लिया कि सर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. द आइडिया इज योर कंसेप्ट शुड बी इंग्रेव्ड इन योर माइंड लाइक दिस. किसी ने आपसे मिड पॉइंट थ्योरम पूछा, किसी ने आपसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूछा, रात को 2 बजे भी उठा के पूछेगा तो भी आपको बता देंगे करेंगे सर ऐसे. 2 बजे का मतलब व्हेन यू आर इन योर डीपेस्ट स्लीप, तब भी you should tell him that this is the future. That should be the level of your thinking, not study. That should be the level of your thinking. Okay? And my dear friends, if you develop a thinking like this, nothing is impossible. Next question. The height of a right circular cone cylinder is equal to its diameter.
बहुत अच्छी बात है. If it is melted and recast into a sphere of radius equal to the radius of the cylinder, बहुत सुंदर बात है. Find the part of the material that remains unused. अब यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे अनयूज्ड रहेगा. कैसे निकालेंगे बेटा? पहले तो आप क्या करो कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर निकाल लो. फिर आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर निकाल लो. दोनों के वॉल्यूम का रेशियो. If the ratio comes out to be 1, that means whole the material has been used. If the ratio comes out to be something else, that means इतना ही material used हुआ, कुछ part of material is still left. और कौन सा part still left होगा, वो ratio को 1 से जब आप subtract करोगे, so you will get what percent of material is left. So try this question. You guys have 2 minutes for this. Check. The idea behind this question is we have to calculate the volume of the cylinder, then we will calculate the volume of this sphere, and उसके बाद जो भी volume आएगा उसका ratio अपन calculate करेंगे, and then we will see देखते क्या होता है. So volume of cylinder. Why it is not working? Volume of cylinder will be equal to the height of a right circular cylinder is equal to its diameter. यानी कि अगर radius है, अगर height है 2r and radius will be equal to r. Radius will be equal to r and height is equal to 2r. The height of a cylinder is equal to its diameter. So the volume of the cylinder will be equal to pi multiplied by r multiplied by r multiplied by 2r. ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई confusion? And if it is melted and recast into a sphere of radius equal to the radius of the cylinder. भाई अब volume of sphere क्या था? Volume of sphere was 2 by 3 pi into r cube. यही था ना sphere का volume? सर 4 by 3 pi. 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 पक्का? ये हेमिस्फेयर का है. मुझे तो लगता है कि 2 by 3 है. चलो 4 by 3 है. So the volume of the sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. Now I have to take the ratio of the two things. तो जब मैं ratio लेता हूँ यहाँ पे, so what I will find, my dear friends, 4 by 3 pi r cube divided by 2 pi r cube. Pi से pi cancel हो गया. Sorry, pi से pi cancel हो गया. This will be 2. With r cube से r cube cancel हो गया. So volume of sphere divided by volume of cylinder is nothing but 2 upon 3. That means जो हमारे पास volume left हुआ है, the volume the material that has been left is 1 by 3. क्योंकि हमने क्या किया, हमने 2 by 3 तो यूज कर लिया. हमारे पास बचा कितना? Volume of sphere is equal to 2 by 3 times the volume of cylinder. So volume left will be equal to V cylinder minus 2 by 3 times of V cylinder, which is equal to 1 by 3 times of V cylinder. That means, my dear friends, we have used 2/3 of the material and 1/3 of the material is still unused. तो हमें ये बताना था कि what part of the material is unused. तो हम ये we will say that the 1/3 of the material is unused. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कई तरीके के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं. सपोज करो अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा दे देता है कि ऐसा केस दे दिया आपको, मान लो कि only 10% of the material was used या only 90% of the material was used. तो जब आप रेशियो निकालोगे तो यू विल इक्वेट इट टू 90 by 100, है ना. जितना भी रेशियो आपको दिया होगा उसके बराबर आप उस रेशियो को फाइनली इक्वेट करोगे. यहाँ पे मान लो अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सपोज करो कैलकुलेशन के बाद 1 आ जाता है. इसका मतलब ये होता है कि ऑल द मटेरियल ऑफ सिलेंडर हैज बीन यूज्ड फॉर द recasting into
स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा मटेरियल नहीं यूज हुआ है, सिर्फ 66.66% ही यूज हुआ है। They can ask it in percentage terms also कि आपका कितना परसेंटेज वॉल्यूम यूज हुआ है। So the answer will be 66.67 or 66.66%. Beta, actually, he has no guts to stay and talk. He has no station. Water is flowing at the rate of 10 meter per minute through a cylindrical pipe having its diameter as 5 mm. बहुत अच्छी बात है भाई. How much time will it take to fill a conical vessel whose diameter is 40 centimeter and depth is 24 centimeter? सबसे पहले इस वेसल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं. Volume of vessel will be equal to 1 by 3 multiplied by pi multiplied by whose diameter is 40. Diameter 40 है तो radius कितना हो जाएगा 20. We will convert all the units to सेंटीमीटर में अपन कन्वर्ट करेंगे और जो टाइम होगा उसको अपन मिनट में लेके चलेंगे. ठीक है, we are not going to take the time in hours, so we will take the time in minute. 1 by 3 into pi into जब डायमीटर है 40 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 into 20 और इसकी हाइट कितनी है, हाइट दी हुई है, हाइट मतलब इन दिस केस दिस विल बी डेप्थ. So depth is given as 24. Now mind it, my dear friends. No need to solve this. Again I am saying no need to solve. ठीक है, अब आप लिखोगे उस पाइप के थ्रू कितना पानी 1 मिनट में बहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ पाइप. Volumetric flow rate of pipe. This will be in terms of centimeter cube per minute of pipe. पाइप की लेंथ, पाइप से पानी के बहने का रेट क्या था 10 मीटर पर मिनट. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते थे 100 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी 100 centimeter per minute. Here I am writing in terms of minute, in terms of unit also, so that you can have a visualization of what we are going to do. ठीक है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो कितना था सेंटीमीटर क्यूब में. ठीक है, so here the volumetric flow rate is 100 centimeter per minute. पाइप का जो क्रॉस सेक्शन होगा, जिससे मेरा पानी बह रहा है, that will be in the terms of pi r square, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर. इस तरीके से जो मेरा पानी बहेगा, that so the cross section will be circular. तो इसका जो एरिया होगा, उस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा, that will be pi r square. So this will be pi into रेडियस कितना दिया हुआ, डायमीटर इज गिवन एज 5 mm. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है. सो दिस विल बी 5/10 सेंटीमीटर. और उसको जब अपन सॉल्व करेंगे, इफ आई दैट विल बी डायमीटर इज इक्वल टू 5/10 सेंटीमीटर. और इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, इट विल बी 5/20 मीटर. 5/20 centimeter. This will be radius. So the radius will be equal to 5/20 centimeter. So 100 centimeter per minute multiplied by 5/20 multiplied by 5/20. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे दोस्त, और इसको हमें टोटल टाइम निकालना है. तो इसको I will multiply it with t and then I will solve, and after solving I will get the value of t as 51.2 minutes. Those who have solved it,
क्या उन्होंने किसी और मेथड से किया है? इफ यस देन प्लीज लेट मी नो, इफ नो देन वी विल मूव फर्दर. If yes, then please let me know. If no, then we will move further. I'm not solving this. I'm leaving this solution to you only. कैसे solve करेंगे? बहुत आसान सी बात है सर. पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा. Here it will be अब इसके बाद आप ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा 2 into 2 that is 16. 4 into 8 will be equal to 32. 32 multiplied by 20 multiplied by 20 divided by 5 into 5. ठीक है. So after solving it you will get the answer. ठीक है. छोड़ दो इसको, कर लोगे? छोड़ दो इसको, कर लोगे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है. So I'm leaving this. How you got the diameter as 5/20? Diameter नहीं बेटा, that is radius. मैंने diameter is 5/20. diameter कितना दिया हुआ था? 5 mm दिया हुआ था बेटा. तो diameter को जब मैं mm को जब मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो it will be 5/10 सेंटीमीटर. एंड जब मैं इसको रेडियस में चेंज करूंगा तो it will be 5/20 because diameter is equal to twice of radius. ठीक है. So that is why it will be 5/20. I hope I am clear. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. Oh, now this is a very interesting question. चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को. A well of diameter 2 meter, a well of diameter 2 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out is spread uniformly around it to a width of 5 meters to form an embankment. Find the height of the embankment. ठीक है. The time for you to solve this question is just 1 minute. The time starts now. देखो, a well of diameter 2 meter is dug 14 meter deep. एक कुआं है, उस कुएं को हमने 14 मीटर गहरा और 2 मीटर चौड़ा हमने खोदा. अब जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को यूज करके मैंने एक वो जो अपन तो गांव में उसको मेड़ बोलते हैं, जहां पता नहीं क्या बोलते हैं, सीमेंटेड पार्ट अराउंड द कुआं, वो हमने बना दिया. ठीक है. अब मुझे ये बताना है कि उस सीमेंटेड पार्ट की हाइट कितनी होगी. तो भाई सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ दिस सीमेंटेड पार्ट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कुआं. Volume of the cemented part will be equal to volume of this well. तो well की वॉल्यूम क्या है भाई? Diameter 2 meters है. Diameter was 2 meter. Diameter 2 meter था, हाइट 14 मीटर थी. तो जो वॉल्यूम हो जाएगा that will be pi into 1 into 1 into 14. Now this will be equal to pi into 6 square minus 1 square multiplied by h dash. ठीक है. pi into 6 square minus 1 square multiplied by h dash. अब 6 square minus 1 square को या तो सॉल्व करके 36 minus 1 that is equal to 35 लिख लो, या मेरे को 35 नहीं समझ में आता, मेरे को सिंपल सी ये समझ में आती है. दिस इज इक्वल टू a plus b into a minus b. तो 6 plus 1 हो गया 7, 6 minus 1 हो गया 6 minus 1 हो गया 5. So I will write it as 14 is equal to 7 into 5 multiplied by h dash. So this will be get cancelled. So h dash will be equal to 2/5. अब ये 2/5 जो है ना बेटा, that is equal to 0.4. So this will be the answer. You tell me where was the how you were getting a different answer, my dear friend. Please tell me where you made the mistake. Answer is 5 meter.
You are giving answer or you are telling that we all have done wrong? जय, बेटा आप आंसर दे रहे हो या आप ये बता रहे हो कि आप हम लोगों ने कुछ गलती की है, आप ये बोलना चाह रहे हो या आप ये बोलना चाह रहे हो? मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। ओके, आप कंफर्म करना चाहते हो? नहीं बेटा, द आंसर 0 point, right? How we have done this is the logic. Okay. We have just equated the volume. The volume of the cylindrical portion will be equal to the volume of the embankment. That is what we have done in the question. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. Do we have one more question on? क्या हमारे पास और सवाल है? नो, अब हमारे पास और कोई सवाल नहीं. ठीक, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लास को यहाँ पे खत्म कर दिया जाए या नहीं खत्म किया जाए, तो थोड़ा सा समझ लिया जाए कि क्या होता है, क्या चीजें होती है. देखो बेटा, अब जो है, अब हम लोग जो बात चीजें पढ़ने जा रहे हैं, द नेम ऑफ द थिंग इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. यहाँ पे क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर के ऊपर नीचे आप दो हेमिस्फीयर को चिपका दोगे, इस टाइप का एक सॉलिड बन जाएगा. और भी कई टाइप के सॉलिड्स बनेंगे. तो आपसे दो चीजें पूछेंगे, एक आपसे पूछेंगे व्हाट विल बी द सरफेस एरिया, दूसरा आपसे पूछेंगे व्हाट विल बी द वॉल्यूम. कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में आपसे दो चीजें पूछेंगे कि जो कॉम्बिनेशन है उसका सरफेस एरिया क्या होगा या फिर उसका वॉल्यूम क्या होगा. जहां पे वॉल्यूम वाला केस आएगा, दैट विल बी द इजीएस्ट केस, यू डोंट हैव टू वरी. आपको क्या करना है, सारे सॉलिड्स के वॉल्यूम को जोड़ते जाओ, कंबाइन करते जाओ, आंसर दो. When it comes to surface area, that becomes the toughest thing. क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा. कैसे कंपैरिजन करना पड़ेगा सर? फॉर एग्जांपल देखो, ये केस है, ठीक है, ये केस है. इस केस में अपन ने क्या किया है, एक सॉलिड, एक सिलेंडर के ऊपर अपन ने सिलेंडर के ऊपर दो हेमिस्फीयर चिपका दिए. ठीक है, आई हैव फिक्स्ड 2 hemispheres on a cylinder, right? Ideally this figure should be this followed by this, but what they have done is they have fixed 2 hemispheres over a square. अब मुझसे जब टोटल सरफेस एरिया पूछेगा ना बेटा, वहां पे एक बात करेंगे, हम उसी सरफेस के एरिया की बात करेंगे जो सरफेस हमें दिखेगा. फॉर एग्जांपल ये पेन देखो, आप लोगों को ये पेन दिख रहा होगा. अब इस पेन में इस वाले पोर्शन को, अभी तो खैर इसका, हाँ, अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये जो कि मेरे पॉकेट में क्लिप बन सकता है, मैंने इसको उठा के इसके साथ जोड़ा है. तो मैं इनका जो सर्कुलर पोर्शन होगा ना, वेट लेट मी ट्राई टू रिमूव इट. व्हाइल कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया माय डियर फ्रेंड, आई एम नॉट going to calculate the area of this circular wala portion. While calculating the surface area, I am not going to calculate the area of this circular portion. क्योंकि मेरे दोस्त, ये जो सर्कुलर पोर्शन है ना, ये मेरे से ढक गया है, मतलब that circular portion is covered. तो अब मैं सरफेस एरिया निकालते वक्त उसी सरफेस के एरिया की बात करूंगा जो एरिया मेरे को विजिबल है, जो एरिया अंदर है. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, तो मैं क्या बोलूंगा, सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस lateral surface area of this cylinder. I'm not going to take the total surface area of this cylinder, क्योंकि ये वाला पोर्शन दोनों क्या है, मेरे ढके हुए हैं. ढकी हुई है, उसकी बात अपन यहाँ पे नहीं करें. थोड़ा सा हेवी हो गया होगा, it must be little bit heavy,